speak Hindi and English? No, only Yes, English? sir. So both. Both. That's good. So I think now it's good. So, so now we can start how to change the second slide. Yeah, I think this one. So now we can start the difference between collision and the scattering. Do you know what is the difference between collision and scattering? Anybody else? No? Can you hear me? Sir, in collision, when two bodies collide, they start moving together, but in scattering, they collide and move in different directions. Yeah, exactly. But a little bit difference between the scattering and the collision. Because collides, that means there should be some kind of collision. That means there should be some physical interaction between the two particles. Okay. But in scattering, there should be some kind of interaction between the force. That means there should be some kind of potential around that particle and then the other particle. So there is a interaction between the incoming particle and the target particle. So we can say there is no physical interaction, but there should be some kind of there should be some kind of uh, uh, interaction, and it is known as just touch. That means the interaction between the field or potential of the target and the incoming particle. They never touch, just like as collision. Because collision में आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी हम रोड पर जा रहे हैं तो जो कोलिजन होती है जो टक्कर होती है उसको आप देख सकते हैं आप डेली लाइफ में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। जो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम जब भी देखेंगे तो इसका मतलब है कि वो हमेशा फिजिकली टच नहीं होती है। देन दे आर अपीयरिंग जस्ट लाइक एज just touch. That means there is a interaction between the potential and the incoming particle। जैसे फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड स्कैटरिंग या फिर अल्फा स्कैटरिंग। उसमें क्या होता है कि अल्फा स्कैटरिंग में जो अल्फा पार्टिकल है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से coming from infinite distance to the target that means some kind of copper or gold nucleus, then there should be some approach. That means alpha particle approaching somewhere which is known as the closest approach distance, and this closest approach distance nomenclature, why? Because there are the there are the total energy of the alpha particle is equal to the total energy of the alpha particle and the nucleus. That means only total energy of that alpha particle is related to the only half mv square. Exactly. I think I can write something. No, this is eraser, yellow, thickness. No, this is pen. No. Yeah, I think we can see something here like this is the target material. Now you can see this is the alpha particle coming from here like this way, and this goes like this. So that means this particle, if it is coming from here, then how you can see? So this is the C for the closest approach distance. At this point, we can say the potential of the alpha
particle which is equal to half mv square, only the kinetic energy of that potential and of that particle, and which is equal to the total energy of the both alpha and the nucleus. That means the potential energy is equal to kZe and then q over r plus. The next thing is, again, if we consider here velocity of that alpha particle is Vc, then we can say the kinetic energy again half mvc square. So exactly the things are here where we can do all kind of measurements in the laboratory frame and the C frame. So you know about the laboratory frame and the C frame. So why C frames are required? Because in laboratory frame you can see every daily life collision, but some kind of collision where we can't get any kind of solution. Why? देखिए अगर मान लीजिए कोई भी 2D collision है in lab frame, then first two type of particles along the x-axis. This is the M1 particle and then this is M2 particle. So this is M1, this is 1 and this is 2. And then if this is the potential for the, this is not potential. I think I have little bit problem to write down the things because I don't have the pen right now with me. Maybe tomorrow I have with me. Today I have left सर somewhere. आप कुछ शेयर कर रहे हैं क्या दूसरा स्लाइड, क्योंकि हमें पहले वाला ही दिख रहा है। नहीं, अभी मैं पहले वाले में ही हूँ। ओके ओके ओके। मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो सी फ्रेम है और लैब फ्रेम है दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों जरूरत है। So are you ओके getting my point or I can speak in both? सर आई थॉट दैट यू आर राइटिंग समथिंग बट वी Yes, कांट yes, I am writing. Yeah, I am writing something. So here I explain little bit about the alpha scattering in this. but it's not visible to us. Ah, okay. Then I will start maybe by the new slide. Now we already discussed about the collision and the scattering. So recall the collision of two particles. Now it is visible? Yes, sir. Yeah, Actually, the previous. Okay, so it's visible now. I think it's visible now. Yes. So आप देखिए यहाँ पर let us assume M1 and M2 particle and the velocities are V1 and V2 before the collision. If the particles are free, or we can say if the particle is effectively free, then the energy is positive for these particles. If we can say after some time these particles are collide each other at some points, then what is the possibility? It may be in a plane or it may be in a line. Am I right? Yes, sir. या तो इसका मतलब है अगर मान लीजिए M1 और M2 कहीं पर दो पार्टिकल है, अगर एक्स एक्स के अलोंग आप कोलिजन करवा रहे हैं तो इट मे बी आफ्टर द कोलिजन it will go in xy plane or maybe in a plane. So basically we consider here both particles will go in xy plane. So exactly the main thing here, like this. After the particles, these are interacting like this. So after the scattering, these particles are going this way, M1 and then M2. Now we come to the next point where how we can see these particles after the scattering. So this is the some point where they interact somewhere
Now this is the particle and this is the another particle. So exactly the things are here. If we consider the particles before the scattering in a single direction, then after the scattering, these particles are in xy plane or maybe yz plane or zx plane. Then how we can write the equation for the conservation of the momentum and conservation of kinetic energy? So we can write using all these conservation laws, we can write here three or maximum three equation. And somebody अगर मान लीजिए आप कोई ये कहना चाहे कि साहब मैं तो फोर्थ इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, हाउ कैन राइट? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ यू कैन राइट द फोर्थ इक्वेशन फॉर दिस kind of measurements? Yeah? No? No, sir. देखिए जब भी एक्स के अक्ष के अलोंग अगर हम दो पार्टिकल ले रहे हैं और दोनों की वेलोसिटीज कुछ दी हुई हैं, मान लीजिए बिफोर कोलिजन एंड देन आफ्टर कोलिजन देर आर अगेन टू पार्टिकल्स but the direction are different, that means we can say these particles are in a plane, then we can write only three equations as per the conservation of momentum. अगर मान लीजिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है आपको, दैट मीन्स वी कैन से देयर शुड बी वन इक्वेशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अनदर इक्वेशन इज अलोंग टू द वाई एक्सिस. Am I right? Yeah. Yes, sir. Now, Yes, there is sir. only one more equation from the conservation of kinetic energy. That means we have only three equations from these conservations, or we can say for this kind of collisions. If this collision is elastic collision, then how we calculate the four parameters? Because if you are going to work in the uh, in a plane, then we have to find out v1 prime and v2 prime and theta 1 and theta 2. So how we calculate four parameters by using the only three equations? So it is a little bit again difficult to find out the problem, find out the solutions. So that's why we require here C frame or the center of mass of frame of reference or zero frame, because in C frame we have one more condition. You all know about the center of mass frame of reference. Yes, so that means we can write PCM equal to 0. That means momentum for the center of mass frame ऑफ रेफरेंस के लिए हम जो लिखते हैं PCM इक्वल टू 0, दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0. दैट मीन्स इसको अलग अलग कर लीजिए आप. बिफोर द कोलिजन टोटल जो मोमेंटम है वो इक्वल टू 0 है, और आफ्टर द स्कैटरिंग आप उसको भी अलग अलग कर सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन से इट इज ए one more condition. So that's why we solve these equations or these kind of difficult equations in the C frame, because we have here one more condition. So that's why we have to calculate here four parameters using the C frame. So now exactly this is the scattering experiment. We have one target, and this is the incident beam, where you can see this is the incident beam. Now there are some kind of measurements, or we can see here is a plane where you can see scattered or unscattered particles. That means after scattering there are two type of particles. One is scattered and another is unscattered. Unscattered, that means all the particles are exactly in the same direction as well as incident direction, and the scattered particles are going to in a direction where we can say it will be in theta or phi, and these particles are detected by a detector where we can confine a solid angle
and you can say why we require the solid angle for these kind of particles. So solid angle, that means we have to confine the detector somewhere where the particles are collected in a where the particles are collected in a area which is denoted by dA in your presentation, and then we can say how much number of particles are detected by the detector in the surface area dA in the direction of theta and phi. So here we can include everything. So exactly here we represent here only theta. So we can represent here phi also, because phi is related to the limits for the phi is the 0 से 2 pi exactly. अगर आपको देखना हो तो इससे जस्ट आगे वाले में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए आप इसी चीज को, तो अगर ये इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, ये वाले यहाँ पर जो ए है डायग्राम, ए डायग्राम को आप चेक करें, ए डायग्राम में देखिए तो यहाँ से इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, देन ओ पर जो टारगेट दिया हुआ है यहाँ पर particles interact होते हैं, then some particles are scattered and some are going along the z axis. अगर particles z axis के along जा रहे हैं, that means these are the unscattered particles. If the particles are scattered in some direction theta or phi, then we can say these are the scattered particles, and where we collected the particles by the detector, and it is known as the uh, detector, where we can define a solid angle dA. In the B part you can see the solid angle where this is the dA, that means here you can see this is the surface area for the detector, that means by which you are your particles are coming from in a from or maybe in a conic way, but here in the detector the surface area is dA, so we are collecting the particles in a solid angle. So exactly the same thing. Now we are doing something here, that means the number of scattered particles in a surface area dA per unit time per unit flux, it is known as the differential scattering cross section. That means if we are getting some number of particles from the scattered particles, यानी कि हमने एक कन्फाइंड पार्टिकल लिए हैं अभी तक, ओनली जहां पर डिटेक्टर है, या फिर ये कहें जहां पर ओनली डीए एरिया है, उसी एरिया के पार्टिकल्स को हमने डिटेक्ट किया है। सो हम कह सकते हैं दिस इज द ओनली डिफरेंशियल पार्ट, यानी कि उसके कुछ पार्ट ही हमने डिटेक्ट किया है। अगर आप ऐसे ही इन पार्ट्स को डिटेक्ट करें इस पूरे 3D स्पेयर में, तो हम उसको कह सकते हैं टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो ये दिखाने का बेसिक जो मतलब है यहाँ पर यही है कि अगर मान लीजिए इंसिडेंट पार्टिकल्स यहाँ पर आ रहे हैं अलोंग द जेड एक्सिस एंड ऊपर अगर टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी कैन से देयर इज the some number of particles in the direction of theta and phi in a solid angle d1, which is known as the differential scattering cross section. So ये जो सॉलिड एंगल बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि हमने कोई डिटेक्टर रखा है और इस डिटेक्टर पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल जा रहे हैं वो इन ए कोन जा रहे हैं, इन ए कोनिक वे। अगर ये जो कोनिक वे में जा रहे हैं, इसका मतलब है हम इस चीज को कहाँ पर डिफाइन करेंगे, सॉलिड एंगल में, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कहीं फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। Yes, sir. फिर जो मेन थिंग आती है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी मैं इसकी बात भी कर चुका हूँ, फिर से इसकी बात आ रही है कि हम यहाँ पर जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक मोर कंडीशन आ जाती है बाय द कॉन्स्टेंट्स और बाय द डेफिनेशन ऑफ द सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो सीएम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो विच इज
PCM equal to MVCM equal to 0. M is not equal to 0. So that's why we can represent VCM equal to 0. So अगर आपके पास VCM equal to 0 है, that means you can say these are the inertial frame of reference. So that's why I underline the inertial frame of reference, because it follows the first law of the Newton. Okay. आया समझ में बेटा? Yes sir. ओके, तो जो सी फ्रेम है उसी को हम जीरो फ्रेम भी कहते हैं और उसको सीएम फ्रेम भी कहते हैं। और जो एग्जैक्टली जो हम जो मेजरमेंट करते हैं, जो रियल मेजरमेंट होते हैं, वो कहलाते हैं लैब फ्रेम। क्या नाम है उनका? लैब फ्रेम, या फिर लेबोरेटरी फ्रेम, या फिर लैब फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और बाकी के जितने भी रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे या फिर लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में ही सी फ्रेम होगा हमेशा, ये ध्यान रखना आपको। या फिर ये कहें कि जब भी हम सी फ्रेम को देखेंगे तो हमें किस में देखना पड़ेगा? पहले लैब फ्रेम में देखना पड़ेगा कि वो पार्टिकल्स कैसे हैं, और उसी के बाद हम उन चीजों को क्या कह सकते हैं कि ये पार्टिकल कैसे वहां पर जाएगा। तो ये चीजें आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो ऑन कर लीजिए मेरा भी, और उससे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इन चीजों को। वीडियो इज नॉट वर्किंग, व्हाई? आ जाएगा। देखिए, लेबोरेटरी फ्रेम, द फ्रेम वेयर मेजरमेंट्स आर एक्चुअली मेड। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही डेफिनेशन दी, एग्जैक्टली द सेम थिंग आई डिड हियर। एंड सेंटर ऑफ मास वेयर द फ्रेम्स where the center of mass of the system is at rest and the total momentum of the system is zero. So exactly by the definition we can say here PCM equal to 0 or we can say VCM equal to 0. उसी टर्म को हम यहाँ पर बार बार यूज करेंगे। और नाउ दीज आर द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, देन कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। दो प्रकार की कोलिजन होती है आपके पास, एक तो मैक्रोस्कोपिक होती है, एक माइक्रोस्कोपिक। तो ये बिल्कुल शॉर्ट नोट है जो आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं, उन्हीं को मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपको मैक्रोस्कोपिक टच है आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। दैट मीन्स जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं या फिर कहीं जो स्थूल पार्टिकल होते हैं, बड़े पार्टिकल होते हैं, वो हमेशा टच करते हैं, यानी कि उनमें कोलिजन होती है, फिजिकल कोलिजन होती है। और जो माइक्रोस्कोपिक है दे नेवर टच बट पासिस वेरी नियर टू ईच अदर। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था रदरफोर्ड स्कैटरिंग का, तो हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जैसे कर सकते हैं वैसा ही यहाँ पर एक मेजरमेंट है, उसको हम बताएंगे अभी। इलास्टिक कोलिजन में है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बोथ यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में ओनली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होता है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अलाउ नहीं होता है यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट टर्म है इसमें, इस नेक्स्ट टर्म को आप फिर से चेक कर लीजिए। now it is visible to you or not? Yes sir, it's visible. सबको दिख रहा है ना? Yes sir, इलास्टिक it's कोलिजन visible. इन 2 डायमेंशन। Yes sir. Yes sir. हाँ, तो अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे को बताइए, फिर इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। No sir, it's clearly visible to us. हाँ, तो अब हम जो बेसिक चीज है वो समझते हैं पहले कि इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो सबसे पहले आपने पार्टिकल्स देखे यहाँ पर M1 और M2 दिख रहा है आपको, M1 और M2 पार्टिकल्स। ये दोनों जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं M1 और M2, वेयर these particles are in laboratory frame. Now this is laboratory frame. अगर हम laboratory frame में दोनों particles को देख रहे हैं तो velocity for the both particles u1 for the m1 and u2 equal to 0. That means m2 particle is at rest before the collision.
Now, after the collision, these particles are going in xy plane. So here we consider these particles. So in xy plane, m1 particle with the velocity v1 and the scattering angle is theta1. And the another particle m2 is scattered in x and minus y plane with velocity v2 at theta2 scattering angle. So we can write down the conservation of momentum here for this scattering. तो सबसे पहले एक्स एक्स के अलोंग आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m1u1, क्योंकि ये जो बिफोर कोलिजन है, these particles are along the x-axis, so we can write down the total momentum before the collision. That means m1u1 plus m2u2, u2 equal to 0. So that's why there is only one term, m1u1 equal to. After the collision, there are velocities, and velocities are the vector quantities. So you can represent, or you can write the two component along the x-axis and y-axis. One component is along x-axis and another is y-axis. So along the x-axis, the component of v1 is v1 cos theta 1. So that's why we can represent here in x direction the momentum is m1 v1 cos theta 1. Yes, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, नहीं आ रहा तो उसको पूछें आप मेरे से. सो द नेक्स्ट थिंग, सर ये इफ, पहले भी पढ़ चुके हैं मैकेनिक्स में, तो आ रहे हैं. ओके ओके ओके, बट दिस इज द very basic thing. Otherwise, you have, if you are not going this points, then it is a little bit difficult for you to understand the scattering problem. ये सारा स्केटरिंग प्रॉब्लम इसी पर आधारित है. ओके, तो जो m2 v2 cos theta 2 ये x x के अलोंग लिख सकते हैं, देन y x के अलोंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. ये वाई एक्स के अलोंग देखिए, तो वाई एक्स के अलोंग 0 है, देन m1 v1 sin theta 1 plus m2 v2 sin theta 2, and this is the equation number 2, and the conservation of kinetic energy. That means we can write down again half m1 u1 square plus 0 for the second particle, and then half m1 v1 square plus half m2 v2 square. This is the equation number 3. So here we have only 3 equations, and then we have to find out here 4 parameters. देखिए v1 v2 and theta 1 theta 2. So that's why this is not possible in laboratory frame. So it is considerable for the C frame. तो फिर हम C frame लिखते हैं. तो ये C frame है. देखिए C frame में हमने इसको फ्रेम आउट किया है. कैसे C frame है ये, हमने C frame में जब कैलकुलेशन करेंगे तो पहले इसका डायग्राम दिखाते हैं आपको. ये रहा डायग्राम. यहाँ देखिए m1 और m2 दो पार्टिकल हैं और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आपको इन चीज़ों को. तो फिर इन सी फ्रेम वी कैन डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंड देन वी कैन डिफाइन द वेलोसिटी ऑफ द m1 पार्टिकल बिफोर कोलिजन. तो आप यहाँ से देख सकते हैं u1 प्राइम इक्वल टू u1 माइनस का vcm. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ m1 पार्टिकल इन सी फ्रेम with respect to the center of mass. This is the meaning of the u1 prime, and then you can calculate this equation by the equation number 5. And velocity of m2 particle in C frame with respect to the center of mass, again we calculate, and then we can find out a relation between these two particles momentum. So if you want to see the momentum of the both particles before the collision, then we can have this kind of relation. That means m1 u1 prime equal to minus m2 u2 prime. That means both particles are coming towards each other with opposite velocities. Yeah, this one. जैसा कि हमने यहाँ दिखा रखा है उसको भी आप चेक कर सकते हैं. नाउ आफ्टर द कोलिजन यू कैन फाइंड आउट. सो अगर आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज है
then you can find out the velocities of the u1 and u2 particle after the collision or before the collision using the these equations. हमने ये इक्वेशन कहाँ से काम में लिए, देखिए पीछे वाली इक्वेशन ये रही, m1 u1 प्राइम इक्वल टू माइनस का m2 u2 प्राइम एंड m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 प्राइम। हमने कहा है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होगा, यहाँ पर जो मोमेंटम है शुड बी जीरो। यही है कंडीशन हमारी सी फ्रेम में। तो उसी कंडीशन को फॉलो अप कर लिया और उस कंडीशन को फॉलो अप करने के बाद में हम ये दोनों के लिए वेलोसिटीज का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से u1 प्राइम इक्वल टू v1 प्राइम, और ऐसे ही आप दूसरा निकालेंगे, सिमिलरली यू कैन गेट u2 prime equal to v2 prime. Now calculation of scattering angle, v1 prime equal to v1 minus ka vcm, then v1 equal to v1 prime plus vcm. And now you can rearrange only this equation, and there is again two type of component along x-axis and y-axis to calculate the scattering angle. So how we calculate the scattering angle? Now you can represent in the sin theta or cos theta and then divide the equations, and then we can find out tan theta 1 in terms of theta or VCM and V1 prime. Now you can say this tan theta 1 is equal to, converted like this, tan theta 1 equal to V1 prime sin theta over V1 prime cos theta plus VCM. Then you calculate in terms of sin theta over cos theta plus m1 by m2. If you want to calculate it v1 prime over, sorry, this is not v1 prime, vcm over v1 prime, then you can say vcm over v1 prime is equal to m1 over m2, which is equal to ratio of the mass. So now theta 1 or maybe जो scattering angle है for the theta 1 for the m1 particle is the function of theta, and theta is the scattering angle in the C frame. So exactly we are going to the C frame. तो देखिए यहाँ पर अगर m1 is greater than m2 है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पीछे जाइए, देखिए अगर m1 is greater than m2 है then this term is greater than 1. ओके, अगर ये greater than 1 है then we have to find out some values of the cos theta. If theta equal to 5, then we can see cos theta equal to minus का 1. That means this term is every time positive. Or if this term is every time positive and have some values, then we can say every time the maximum value of this term should be less than infinite. क्योंकि जो tan थीटा की वैल्यू होती है वो आपने खुद ने भी देखा है कि मैथमेटिक्स में ये हमेशा कहाँ जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। कब? जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। लेकिन हम थीटा इक्वल टू पाई जैसे ही पुट करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू -1 और -1 होता है। इसका मतलब है कि हम तो ऑलरेडी जो सेकेंड टर्म है वो 1 से बड़ी है, और जब 1 से ग्रेटर देन है देन वी कैन से देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर। सो द मैक्सिमम टर्म शुड बी लेस देन इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यूज है वो हायर वैल्यूज की तरफ होंगी बट इनफाइनाइट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है, ये इसका मेजरमेंट है। तो दैट मीन्स थीटा 1 इज लेस देन पाई बाई 2, ये तो पहला मेजरमेंट है। इफ m1 इक्वल टू m2 देन वी कैन से अगेन cos थीटा प्लस 1, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू पाई cos थीटा इक्वल टू -1। सो tan थीटा 1 जो लिमिट आएगी अब उसको आप चेक कर सकते हैं, थीटा 1 इक्वल टू 0, क्योंकि साइन थीटा ऊपर है तो साइन 0 होते ही 0 हो जाएगा। और जब हम थीटा इक्वल टू पाई कर रहे हैं तो यहाँ तो थीटा की लिमिट है पाई, लेकिन जैसे ही हम चेक करेंगे तो इस थीटा 1 की लिमिट क्या होगी, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये ध्यान देने वाली बात फिर से यहाँ पर कि हम एक नया मेजरमेंट भी कर रहे हैं कि जो बोथ पार्टिकल्स हैं, कौन से m1 और m2 दोनों पार्टिकल आफ्टर स्कैटरिंग पाई बाई 2 से ज्यादा एंगल नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान देना है। और जो दूसरी चीज है यहाँ चेक कीजिए कि इफ m1 इज लेस देन m2 देन tan थीटा 1 जो वैल्यूज हैं माइनस वैल्यूज आएंगी ये सारी, क्योंकि ये जो टर्म है ये सारी नेगेटिव होंगी, और जब नेगेटिव होंगी देन वी कैन से दिस इज द
लिमिट इज लेस देन इक्वल टू पाई। तो हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उस मेजरमेंट को समझना इसलिए भी जरूरी है कि हमने जो मेजरमेंट किया वो मेजरमेंट ये कह रहा है कि हमने जो लेबोरेटरी फ्रेम लिए वहां पर जो M1 और M2 पार्टिकल हैं वो मैक्सिमम पाई/2 एंगल पर जा सकते हैं, और इन सी फ्रेम जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जा सकते हैं, मैक्सिमम पाई पर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। और एक चीज़ और आप लोगों ने पढ़ी होगी जब बीएससी में थे तभी, कि जब जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा क्या होता है, लाइन ऑफ जॉइनिंग के अलोंग होता है। पढ़ा है क्या आपने किसी ने? Yes, sir. कैसे प्रूव करते हैं इसको? किसी भी पार्टिकल्स, कोई भी दो पार्टिकल हैं, उनके लिए कोलिजन की क्या कंडीशन है? इज देयर एनी काइंड ऑफ कंडीशन फॉर द कोलिजन और नॉट? Uh, Okay, that means if you don't have, then we can say the position vector should be same for the both particles at that place. Okay, तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल्स हैं with respect to the origin, the position vector for the M1 particle is R1, and after t time if they collide, अगर मान लीजिए दूसरा पार्टिकल भी ऐसे ही M2 पार्टिकल आपके पास और M2 पार्टिकल है, दैट मीन्स द पोजीशन वेक्टर फॉर द M2 पार्टिकल इज R2, एंड आफ्टर t टाइम बोथ पार्टिकल्स आर कोलाइड समवेयर। तो किसी पॉइंट पर अगर कोलाइड करें दैट मीन्स द पोजीशन वेक्टर फॉर द R1 पार्टिकल इक्वल टू पोजीशन वेक्टर फॉर द R2 पार्टिकल। हाउ कैन वी राइट एग्जैक्टली R1 प्लस का, मान लीजिए लेट्स से V1 इज द वेलोसिटी फॉर द M1 पार्टिकल, देन वी कैन राइट the total position vector for the M1 particle R1 plus V1t for the M1 particle equal to M2 particle के लिए अगर मान लीजिए M2 का velocity है V2, then we can write the position vector for the M2 particle क्या होगा, R2 plus V2t. This is the condition for the collision. Now we can start the scattering and cross section. अब समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है? अब ये हमारा yes. शुरुआत होती है यहाँ से, जो स्कैटरिंग जो है उसकी। तो स्कैटरिंग एंड क्रॉस सेक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन देंगे, उसके बाद में धीरे धीरे इसको थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे कैसे कैसे इसको करना है। तो ये हम बहुत बातें कर चुके हैं, कोलिजन बिटवीन बीम ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल एंड ए टारगेट मटेरियल। अब आपको पता है जब अल्फा स्कैटरिंग हुई थी वहाँ सिंगल पार्टिकल नहीं था, देयर आर सो मेनी पार्टिकल, दैट मीन्स बीम, दैट मीन्स बीम ऑफ द इंसिडेंट वेव्स या फिर इंसिडेंट पार्टिकल्स, नाउ द टारगेट। अब देखिए यहाँ एक डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता रखी हैं। तो सबसे पहले इंसिडेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिख रहे हैं आपको। फिर एक टारगेट है ये सेंटर पर, इस टारगेट के चारों तरफ एक एरिया दिख रहा है, यहाँ चारों तरफ एक एरिया है। इस एरिया को हमने क्या कहा है, पोटेंशियल या फिर रेंज ऑफ द पोटेंशियल। आप लोगों ने अभी तक इसका नाम क्या था, फील्ड। फील्ड क्या था, अलोंग द, या फिर एक चार्ज पार्टिकल था, उस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ ऐसा रीजन जहां पर दूसरा पार्टिकल क्या कुछ एक्शन फील करे। एक्शन का मतलब है यहाँ पर कोई भी मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को फील करे, ऐसा था एग्जैक्टली। नाउ दिस इज द न्यू नेम इज range of the potential, and this is the target. Again we consider here the solid angle in the direction of theta and phi, and this is the ds, or we can represent by dA also, and which is the surface area for the detector, where we can calculate the scattering particles, scattered particles after the scattering, and this is the unscattered particles. कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे वो डायरेक्ट ऐसे कैसे निकलेंगे, उनको बोलते हैं अनस्कैटर्ड पार्टिकल्स। नाउ वी कैन डिफाइन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो सकते हैं,
तो जो टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं एंड टोटल नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इन द पाथ ऑफ द बीम। तो जो मेजरमेंट क्या है, आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल और जो टोटल नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स है, तो कोई जरूरी नहीं कि, कई बार होता है कि एक ही इंसिडेंट पार्टिकल है और एक ही आपके पास टारगेट है। जब हम टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन यानी कि टोटल कोलिजन्स की बात करेंगे और वहां कहें कि 100% मेजरमेंट चाहिए, देन वी कैन डिफाइन 1 to 1 पार्टिकल, दैट मीन्स 1 इंसिडेंट पार्टिकल एंड 1 इज द टारगेट पार्टिकल। नाउ डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, जो आपके यहाँ पर नोमेनक्लेचर आएगा DSC, ये है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स इन ए सॉलिड एंगल DO। ये तो एक रफ डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स इन ए सॉलिड एंगल, ये तो सिंपल डेफिनेशन दे दी। अब हम एज पर क्वांटम मैकेनिक्स या फिर AQM कैसे देंगे इस डेफिनेशन को, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर इंसिडेंट पार्टिकल्स देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स आएगा, तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये जरूरी है। दूसरा, तो DSC को हम रिप्रेजेंट करते हैं D सिग्मा ओवर D ओम से, और जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स है इनटू ए सॉलिड एंगल D ओम। नाउ दिस इज द एज पर फिजिक्स, तो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, क्योंकि हमने जो D ओम कहाँ मेजरमेंट किया हुआ है, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड फाई per unit time and per unit। अभी स्टॉप हुआ था क्या आपके पास? हेलो? Yes, sir. हाँ, ये कोई फोन आ गया था मेरा, इसकी वजह से प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स है इन ए सॉलिड एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड फाई, दैट मीन्स नाउ वी आर टेकिंग सम फ्रैक्शन ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल्स। अभी हमने पूरे 3D में, यानी कि पूरा कहाँ जा रहा है 3D में, एक स्पेयर में स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है ना, चारों तरफ हमने एक रीजन बनाया है, उस रीजन में चारों तरफ वहाँ स्कैटर्ड पार्टिकल है, बट राइट नाउ वी आर टेकिंग ओनली इन ए सॉलिड एंगल, दैट मीन्स सम काइंड ऑफ ओनली ए फ्रैक्शन we are considering here, or we can say we are measuring only in a surface area। तो हमने जो DA सरफेस एरिया लिया है उसी में मेजरमेंट करें, दैट मीन्स ये हमारा जो डेफिनेशन है, ये पर यूनिट फ्लक्स दैट मीन्स JI DN नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स इन द सॉलिड एंगल DO विद रेस्पेक्ट और इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड फाई। सो दैट मीन्स ये एरिया की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है जो D सिग्मा ओवर D ओम है, या फिर ये कहें जो DSC है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, उसकी यूनिट हमेशा किसके बराबर होगी, एरिया की इक्वल होगी। तो JI यहाँ पर जो इंसिडेंट फ्लक्स है उसको करंट डेंसिटी भी कहते हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ये पुराना मेजरमेंट है। तो दैट मीन्स नाउ वी कैन कैलकुलेट TSC, ये जो दूसरा डेफिनेशन आएगा आपके टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, हाउ वी रिप्रेजेंट TSC बाय सिग्मा थीटा, एंड देन सिग्मा इक्वल टू whole integral of D sigma over D ohm with respect to the solid angle, or we can say whole integral of the differential scattering cross section with respect to the solid angle। या फिर ये कहें कि जितने भी नंबर ऑफ टोटल स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं वो कैसे गेट कर सकते हैं। अभी तो हमने एक फ्रैक्शन में ओनली D ओम फ्रैक्शन था, उसी में जो स्कैटर्ड पार्टिकल है उनको कलेक्ट किया था। अब उनको ओनली सब जगह ऐसे ही फ्रैक्शन बनाए और पूरे 3D में उनको हम कलेक्ट करें, तो इसका मतलब है सबका या तो समेशन करेंगे, तो समेशन हम कर नहीं सकते। जब स्कैटरिंग लेते हैं तो इसका मतलब है वहां पर इरेगुलर इंटरवल्स होते हैं, यानी कि कोई जरूरी नहीं कि जो नेक्स्ट वाला है वो रेगुलर इंटरवल ही हो, तो हम इरेगुलर इंटरवल लेते हैं, इसका मतलब है उसका वहां पर इंटीग्रल जरूरी है। तो जब रेगुलर इंटरवल होते हैं तो वो समेशन होता है, अदरवाइज इट शुड बी इंटीग्रल। तो हमने इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रल रखा है, तो ये इंटीग्रल लिखा हमने, और ये है सिग्मा थीटा फाई
दैट मीन्स डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन विद रेस्पेक्ट टू द सॉलिड एंगल। और यहाँ पर थीटा की लिमिट और फाई की लिमिट आप पुट कर सकते हैं। देन देखिए आप डी ओम का जो यही मीनिंग होता है, साइन थीटा डी फाई। जो डी फाई है उसकी लिमिट होती है 0 से 2 पाई, और जो साइन थीटा डी थीटा उसकी लिमिट होती है 0 से पाई। सो जो सिंपल मेजरमेंट है वो 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा, बाकी का मेजरमेंट सेम होगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ आपको कि जब भी आप नेट के एग्ज़ाम देंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम देंगे अभी एमएससी के बाद में, उस सब जगह एक खास बात रहेगी, कभी भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो ये ध्यान रखना है कि जब वो पूछे कि डीएससी और टीएससी में क्या डिफरेंस आएगा, वो कहे कि आपको कि स्कैटरिंग हो रही है, मान लीजिए हार्ड एनर्जी हार्ड स्पेयर की स्कैटरिंग है या फिर सॉफ्ट स्पेयर की स्कैटरिंग है, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज द differential scattering cross section and total scattering cross section. So the basic difference is only multiplication factor 2 pi. If there is some kind of factor 2 pi or 4 pi, then you can say this is the total scattering cross section. Or if there is without 2 pi or 4 pi, then it is related to the differential scattering cross section. And each and every question should have this kind of difference. तो ये आपको ध्यान देना है, इसलिए वहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती है आपको कि ये कौन सी स्कैटरिंग क्या है। जस्ट क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, नथिंग। सर या हार्ड एंड सॉफ्ट स्फेयर का क्या है? अभी मतलब आएगा, अभी आएगा बेटा, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, अभी ओके जस्ट आएगा सर। तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग होगी उस स्कैटरिंग को हम सी फ्रेम में देख रहे हैं, और जो इनकी यूनिट होती है, तो जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है उसको डिफाइन करने का तरीका भी बताया है मैंने, यहाँ देखिए। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज द मेजरमेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। अब टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स कब आएंगे? जब हम पूरी 3D को कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है? स्पेयर को, पूरे स्पेयर को कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स at all angles per unit time when one particle is incident per unit area in unit time। ये कंडीशन क्यों लगाई है? क्योंकि जब भी टीएससी देखेंगे तो इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यूज होती है, और फाइनाइट वैल्यू कब आएगी? जब एक पार्टिकल से एक पार्टिकल टकराएगा। समझ में आ रही है चीजें? तो यानी कि हमने एक कंडीशन लगा दी, क्या कि व्हेन वन पार्टिकल इज इंसिडेंट पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ये सिंपल है, यानी कि हम इंसिडेंट फ्लक्स की बात करें लेकिन वहाँ कांस्टेंट लगा दिए, उस कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही हम फाइनाइट वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। बिकॉज जो सिग्मा टी की वैल्यू है या जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, एवरी टाइम शुड बी फाइनाइट वैल्यू। तो यूनिट अगेन वही आपके एरिया की यूनिट होंगी, और जो यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 बार इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर जो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये न्यूक्लियर और हाई एनर्जीज यूनिट है। तो यहाँ पर आपने अभी तक 10⁻⁻15 तक पढ़ा है, लेकिन अब -24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसी को कन्वर्ट करेंगे इन मीटर स्क्वायर, देन यू कैन से दिस इज 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। सो ये जो मेजरमेंट था उसी को हमने हाईलाइट किया है। नाउ यहाँ देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिक्स में कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक टारगेट लीजिए, ये टारगेट ले लिया हमने, दिख रहा है ना आप लोगों को ये टारगेट? यस निकिता दिख रहा है? तो ये टारगेट है कोई, और उस टारगेट की माना लेंथ L है, और इस टारगेट को डिफरेंट सेगमेंट से बना हुआ मान सकते हैं, dx मान लीजिए, dx सेगमेंट है एक, इसमें ऐसे ही बहुत सारे सेगमेंट से मिलकर बना हुआ इसको मान सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है कि देयर मीन
मान लीजिए dx की जो डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज x, ओके, सो L is the thickness of the target and n naught number of incident particles on the target from the left side। तो हमने assumption किया कि मान लीजिए इस पर n naught जो पार्टिकल्स हैं वो आ रहे हैं इस पर n naught, ये यहाँ पर ये n naught नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ आपके पास इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं। Then if dx is the thickness of the segment of the target and rho is the density of the target, तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो जरूरी क्यों है अभी बता रहे हैं इसी चीज में। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ही निकालते हैं। आप लोगों को याद होगा कि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो बहुत सिंपल मेजरमेंट करते हैं हम। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, क्या होती है प्रोबेबिलिटी, अगर टोटल एरिया वर्सेस फ्रैक्शन ऑफ एरिया लिख रहे हैं हम, DA/A, यही मेजरमेंट होता है। नीचे कितना होता है, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है और ऊपर कितने अवेलेबल सिचुएशंस है, यही है ना प्रोबेबिलिटी। तो अगर हमें dx में निकालना है तो हमने इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, ओके। और ये जो टारगेट मटेरियल है इसमें हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं इसलिए इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं। और सिग्मा टी की कुछ वैल्यू होती है, हमने शुरू में बताया कि अगर एक पार्टिकल है और एक ही टारगेट है इसका मतलब सिग्मा टी शुड बी फाइनाइट वैल्यू। तो हमने इसको लिखा सिग्मा टी रो dx। और ये ट्रांसवर्स एरिया मैंने समझाया कि अगर टोटल एरिया आपका ए है और हम स्कैटर्ड पार्टिकल्स अगर डी ए में ही कन्फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा DA/A, ये मैथमेटिकल चीज है। तो इसमें सिग्मा टी रो dx, जब आप इसकी यूनिट चेक करेंगे तो यह देखिए इसकी यूनिट किसकी आएंगी, चेक कर सकते हैं आप। रो का मतलब है नंबर ऑफ अवेलेबल पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा ये, समझ में आ रहे हैं। तो जब वॉल्यूम आएगा इसका मतलब आप चेक कर सकते हैं इसकी यूनिट लेस क्वांटिटी होगी सारी। अब अगर n नोट नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं, इस लेफ्ट हैंड पर इस जगह, तो इस dx पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल पेनेट्रेट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इनको हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाउ nx number of incoming particles at a distance x from the edge of the target। तो इस जगह से यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ टारगेट पर आ रहे हैं dx पर, तो यहाँ उनका नंबर माना nx है। और जब ये nx है तो जो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं dnx एट डिस्टेंस x, इस डिस्टेंस x में उन्होंने जो ट्रेवल किया नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कितने होंगे। तो यहाँ से जो डिफ्रैक्टेड पार्टिकल है फ्रॉम द, एक बार वो वापस बता दीजिए ना, बिल्कुल सिग्मा टी वाला कैसे आया। इस जगह से कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस एरिया से, इस जगह से, ठीक है, जो ये dx है इस जगह से, इसका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, ये वाला। सर एक्चुअली कर्सर विजिबल नहीं है तो पता नहीं चल पा रहा। अभी भी नहीं है, दिख नहीं रहा, जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख नहीं रहा क्या? नो सर, हम ये स्टार्टिंग से ही नहीं दिख रहा, वही मैं बोल रही हूँ, आप जो मार्क कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा। ये मार्क बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। नो सर, सर आप जूम पे ले लिया करो, अगर कॉलेज वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम जूम पे अटेंड कर लेंगे, वहां पे इजी रहता है, जो मार्क करते हैं वो दिखता है। चलो देखते हैं कि कैसे होगा ये, मैं भी, मेरे को सीखना पड़ेगा लगता है इसको। सर इसमें शायद चल, नहीं होता, अगर आप अडोब वाले ऐप में पीडीएफ व्यूअर आता है उसमें ओपन करते हैं अपना पीडीएफ तो उसमें ऑप्शंस आ जाते हैं, पर इसमें तो पता, आपने जिसमें ओपन कर रखा है उसमें नहीं हो रहा। अभी भी ये कर्सर नहीं दिख रहा जो एक मैं चला रहा हूँ, नो सर, विजिबल नहीं है। नो सर। चलिए कल से पीडीएफ में पढ़ाएंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है और फिर बाकी तो। अगर जूम पे ले लिया अगर आप हमें लिंक सेंड कर देना, हम लोग वहां से ज्वाइन कर लेंगे। चलो फिर देखते हैं एक बार इसको, है ना, कल ही देखेंगे, आज नहीं, अब इसको फिर ही समझ में नहीं आएगा ऐसे।
ठीक है, वैसे भी ऑलमोस्ट टाइम हो गया, आप दूसरे क्लास आप देखिए, ठीक है। ओके। ओके सर, आप इसको पीडीएफ व्यूअर में देख लेना, एक बार ओपन होता है